Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 3 of your textbook, An Empire Across Three Continents. In our previous session we discussed about the empire of Rome and Iran. Today we will discuss about an early empire. So now we'll start the chapter, The Early Empire. The Roman Empire can broadly be divided into two phases, early and late, divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them. In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century can be called the Early Empire, and the period after that the Late Empire. A major difference between the two superpowers and their respective empires was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. The Parthians and later the Sasanians, the dynasties that ruled Iran in this period, ruled over a population that was largely Iranian. The Roman Empire, by contrast, was a mosaic of territories and cultures that were chiefly bound together by a common system of government. Many languages were spoken in the empire, but for the purpose of administration, Latin and Greek were the mostly widely used. Indeed, the only languages. The upper classes of the East spoke and wrote in Greek, those of the West in Latin, and the boundaries between these broad languages areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean between the African provinces of Tripolitania and Cyrenaica. All those who lived in the empire were subjects of a single ruler, the emperor, regardless of where they lived and what language they spoke. ये जो रोमन एम्पायर है इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, अर्ली एंड लेट, जो कि 3rd सेंचुरी में डिवीजन था थ्रू वाटरशेड. ये जो पूरा एरा था मेन पार्ट तक 3rd सेंचुरी के, उसको अर्ली एम्पायर कहते हैं, और जो पीरियड उसके बाद का था उसको हम लेट एम्पायर कहते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों सुपर पावर्स में था वो ये था कि जो रोमन एम्पायर था उसमें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा भिन्नता थी ईरान के मुकाबले. जो पार्थियंस और बाद में ससैनियंस जो डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने ईरान में रूल किया इस पीरियड के अंदर, उन्होंने ज़्यादातर उस पॉपुलेशन पे रूल किया जो ईरानियन ही थी. रोमन एम्पायर जो है एक तरीके से मोज़ेक कह सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीके की कई तरीके के कल्चर शामिल होते हैं. वो एक ऐसी टेरिटरी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, टाइटली बाउंड थी, कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उनका. उसकी वजह से बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है इस एम्पायर के अंदर बोली जाती थी, लेकिन अगर ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस देखा जाए तो लैटिन और ग्रीक का ही इस्तेमाल किया जाता था. यही दो लैंग्वेजेस थी जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से इस्तेमाल की जाती थी. जो अपर क्लास थी ईस्ट की वो बोलती थी और लिखती थी ग्रीक में, वेस्ट में जो थी वो लैटिन में लिखती थी. और इन दोनों लैंग्वेजेस के जो एरियाज़ थे, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में जो है, इसमें इसमें जो बीच की जो बाउंड्री थी वो कहीं मिडल में थी मेडिटेरेनियन के. एक तरीके से जो हम मिडल में कह रहे हैं मेडिटेरेनियन के, वहाँ पर अफ्रीकन प्रोविंस आती थी ट्रिपोलिटानिया की, जहाँ लैटिन बोली जाती थी, और सिरेनका जहाँ पे ग्रीक बोली जाती थी. जितने भी लोग इस एम्पायर में रहते थे वो सारे एक ही राज्य के प्रजा माने जाते थे. जो भी उनका राजा है वो उनका एक ही राजा होगा, भले ही वो कहीं भी रहे और कोई भी भाषा बोले. The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BCE, was called the Principate. Although Augustus was the sole ruler and the only real source of authority, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen, not the absolute ruler. This was done out of respect for the Senate, the body which had controlled Rome earlier in the days when it was a republic. The Senate had existed in Rome for centuries and had been and remained a body representing the aristocracy, that is, the wealthiest family of the Roman and later Italian descent, mainly landowners. Most of the Roman histories that survive in Greek and Latin were written from a senatorial. From these, it is clear that emperors were judged by how they behaved towards the Senate. The worst emperors were those who were hostile to the senatorial class, behaving with suspicious or brutality and violence. Many senators yearned to go back to the days of the Republic, but most must have realized that this was impossible. ये जो रिजीम स्थापित की गई थी ऑगस्टस के थ्रू, जो कि पहले एम्परर थे 27 BCE में, उसे प्रिंसिपेट कहते हैं. ऑगस्टस जो हैं
कहने को एक अकेले राजा थे, एक रियल सोर्स कह सकते हैं, अथॉरिटी के लिए सारी पावर्स इनके पास थी, लेकिन तब भी इस बात को फैलाया गया था कि वो जो हैं खाली एक लीडिंग सिटीज़न हैं और वो एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं है। ये इसलिए किया गया था कि रिस्पेक्ट जो है पूरी तरह से पे की जाए सीनेट को। सीनेट जो कि एक ऐसी बॉडी थी जिसने पहले रोम को कंट्रोल किया था उस ज़माने में, जब वो रिपब्लिक थी। सीनेट जो है वो रोम में कई सदियों से एग्जिस्ट कर रही थी और पहले भी और अब भी थी, एक ऐसी बॉडी जो एरिस्टोक्रेसी या हाई क्लास को रिप्रेजेंट करती थी। उसमें कौन कौन सी फैमिली शामिल होती थी, जो काफ़ी संपन्न परिवार थे रोम के, फिर बाद में इटालियन ओरिजिन के आने लग गए थे, और फिर ज़्यादातर लैंड ओनर्स थे। ज़्यादातर जो रोम का इतिहास है जो कि ग्रीक या लैटिन में बचा हुआ है, वो उन दोनों के थ्रू लिखा गया था, जो कि सेनेटोरियल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। इससे ये पता चलता है कि एम्परर्स को जज किया जाता था इस बेसिस पे कि उनका व्यवहार सीनेट के प्रति कैसा है। सबसे ख़राब एम्परर वो माने जाते थे जो सेनेटोरियल क्लास से ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, उन पे शक करते थे, उन पे अत्याचार करते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। जो बहुत सारे सेनेटर्स थे उनकी इच्छा होती थी कि वो उस टाइम पे चले जाएं जो रिपब्लिक के दिन हुआ करते थे पहले के टाइम पे, पर ज़्यादातर सबको ये एहसास होने लग गया था कि ये पॉसिबल नहीं है। Next to the emperor and the senate, the other key institution of imperial rule was the army. Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was a conscripted army, the Romans had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. Indeed, the existence of a paid army was a distinctive feature of the Roman Empire. The empire was the largest single organized body in the empire, and it certainly had the power to determine the fate of emperors. The soldiers would constantly agitate for better wages and service conditions. अब एम्परर और सीनेट के अलावा एक और भी इंस्टीट्यूशन था, वो था आर्मी। जो रोमन आर्मी के राइवल्स थे, जैसे कि पर्शियन आर्मी जो थी, वहाँ जो आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, यानी कि उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया था। जबकि रोमन्स क्या कर रहे थे, वो अपनी आर्मी को पूरा पे करते थे, साथ ही उनकी सर्विसेज का 25 ईयर्स मिनिमम पीरियड था जो देना होता था उनको। इसलिए जो पेड आर्मी थी, इसका एग्जिस्टेंस एक रोमन एम्पायर का सबसे मुख्य फीचर भी है। ये जो आर्मी थी ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, बॉडी थी, सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी एम्पायर के अंदर। ये जो सोल्जर्स थे ये हमेशा विरोध करते रहते थे कि उनको अच्छा वेतन दिया जाए और उनकी सर्विसेज की कंडीशंस को भी अच्छा किया जाए। If the soldiers felt let down by their generals or even the emperor, again a picture of the Roman army depends largely on the way they were portrayed by historians and senatorial sympathies. The Senate hated and feared the army because it was a source of often unpredictable violence, especially in the tense conditions of the 3rd century when government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditures. अब ये जो इनका विरोध होता था कई बार ये हिंसक भी हो जाता था, क्योंकि अगर सोल्जर्स को ऐसा लगता था कि जो एम्परर्स हैं वो उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब एक और भी बात पे डिपेंड करता है कि ये जो रोमन आर्मी है इसको किस तरीके से दर्शाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो रोमन आर्मी है उनको दर्शाया गया है उन हिस्टोरियंस के थ्रू जिनको सीनेटर्स के प्रति सिंपैथी थी। अब ये जो सीनेट थी वो नफ़रत भी करती थी और डरती भी थी आर्मी से, क्योंकि कोई भी अगर बिना सोचे समझे, मतलब कहीं कोई उम्मीद नहीं है और अगर एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो आर्मी की वजह से होता था, खासकर कि उन तनाव भरे कंडीशंस में 3rd सेंचुरी की, जब गवर्नमेंट जो है उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो और ज़्यादा हैविली टैक्सेस को पे करे, क्योंकि उसे अपनी मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी उठाना पड़ता था।